Good evening, students. Today the acid base chapter will be completed. Okay, so we'll continue where we left last time. Okay, indicator we are studying. So I told you there with here some technical difficulties were there in the video, so I'll do this part again. Okay, turmeric as indicator. Turmeric is an important part of Indian curry. Turmeric का मतलब हल्दी. ठीक है, हल्दी जो येलो कलर का पाउडर होता है आप घर में यूज करते हैं, टर्मरिक, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेटर. टर्मरिक इज नॉट अ वेरी गुड इंडिकेटर, बट एज फॉर homemade purpose it is a very good indicator because it change color when you add alkaline substances in them. Okay, जैसे कि ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर का एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाया था. Similarly, turmeric indicator is a very important indicator. Okay, it turns red on reacting with alkaline substances. Alkaline substances, I have said earlier, it is in base of metal hydroxide or oxides that dissolve in water. The concept of metal hydroxide and oxides, I have said earlier that not all metal hydroxides or oxides are basic, and not all basic metal hydroxides and oxides are soluble in water. So alkaline substances is a special class of base. Those are dissolving in water. Okay, so it doesn't change color in neutral medium or acidic medium. So we'll see how the experiment is done. Okay, turmeric as an indicator. Okay, turmeric indicator experiment, you will need turmeric, lemon juice, नींबू का पानी. से नींबू का पानी में नींबू का जूस ही सिर्फ, उसमें पानी मत डालिए. ठीक है, सोप सोल्यूशन, एनी काइंड ऑफ सोप सोल्यूशन. First, when you prepare turmeric solution, add water in a bowl and add turmeric powder. Make a thick paste, not a watery paste. पानी वाला पेस्ट नहीं, पूरा thick paste. ठीक है, पेस्ट प्रिपेयर हो गया. उस पेस्ट को एक पेपर के ऊपर, पतला पेपर, मोटा पेपर नहीं, पतला पेपर. ओके, पतला पेपर के ऊपर उसको लगाइए, पूरा अच्छे से लगाइए. ठीक है, कंजूसी मत करिएगा, अच्छे से लगाइए, उसको स्प्रेड करिए. उसके बाद उसको 6 to 8 आवर्स के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए. लेट इट ड्राई फॉर 6 to 8 आवर्स. ओके, देन यू विल हैव अ गुड एक्सपेरिमेंट रिजल्ट. इफ यू डोंट ड्राई इट प्रॉपर्ली, you will not have a better experiment results. Okay, now see, he has done the paper pasting part. Now he will let it dry. Okay, he dried the paper. Now he will add lime solution, that is the नींबू का जूस, पानी नहीं, जूस. ठीक है, जूस ऐड करने, एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा. टर्मरिक रेड, येलो का येलो रहेगा. लेकिन when you add soap solution to it, soap solution, okay, when you add soap solution to it, it turns red. इतना भी रेड नहीं, बट पिंकिश टाइप का रेड फॉर्म होगा. बहुत रेड भी नहीं कि कम रेड भी नहीं, पूरा पिंकिश टाइप का रेड फॉर्मेशन होगा. Okay, this you can see these things in the video, but if you search it in YouTube, you will find the video and proper results. This is the experiment you can do in your home. Okay, China rose experiment. China rose experiment is the China rose means Mondara Phula. Okay, China rose is an also example of organic indicators. Okay, China rose turns pink. Okay, China rose indicator is a light pink color solution. China rose आप, ठीक है, जब उसको गर्म पानी में उबालेंगे, ठीक है, उसमें से एक लाइट पिंक कलर सॉल्यूशन निकलेगा. उसको जब आप एसिड में डालेंगे, द लाइट पिंक टर्न्स इनटू डार्क पिंक. लाइट पिंक कलर का जूस निकला होगा उबालने के बाद, उसमें जब एसिड डालेंगे लाइक विनेगर और लेमन जूस, इट विल टर्न इनटू डार्क पिंक. Similarly, when you add base to it, it will turn into green color. See, in organic indicators there is a problem. Okay, why we don't use organic indicators in labs frequently? Because the organic indicators, the color change by adding acid and base is not clearly visible. इतना अच्छी तरीके से
कलर का चेंज नहीं आता, बहुत ही थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, ठीक है। उससे कभी कभी मिस हो जाता है कि वो बेस है कि एसिड है। सो वी डोंट यूज दिस काइंड ऑफ इंडिकेटर, ऑर्गेनिक इंडिकेटर्स इन द lab. We use inorganic indicator, which I will show you how this inorganic indicator work. Okay, the acid turns light pink to dark pink and base turns green. Okay, this experiment also you can see in YouTube by searching it. I won't waste the time here. Then similar the red cabbage experiment, you can see the red cabbage, it is not particularly red, पूरा red नहीं होता, purple type होता है, purple color का होता है। When you make the juice of this cabbage, it's a purple color solution. When you add acid, it turns to red, and when you add base, it turns to greenish yellow. And neutral solution में डालने से कोई change नहीं आता. Okay? So acid डालने से red हो जाएगा. वहाँ dark pink, light pink, dark pink हो रहा था. Acid डालने से green हो रहा था. यहाँ greenish yellow हो जाएगा. So you see this kind of change in color is not so, मतलब इतना मतलब कलर जो चेंज होता है वो इतना डिफरेंट नहीं होता, बहुत ही स्लाइट कलर चेंज होता है, तो इसलिए कभी कभी पता नहीं चलता कि कलर चेंज हुआ है कि नहीं। सो वी डोंट यूज दिस काइंड ऑफ इंडिकेटर्स इन लैब। ओके, विल सी इनऑर्गेनिक एंड पावरफुल इंडिकेटर्स। दिस आर इनऑर्गेनिक इंडिकेटर्स, ठीक है। ये लोग को हम लोग जैसे कि इनऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक बेस है, सिमिलरली इनऑर्गेनिक इंडिकेटर भी है। ओके, फिनोप्थिलिन, फिनोप्थिलिन इसका स्पेलिंग याद कर लेना, कभी कभी गलती हो सकता है फिनोप्थिलिन का स्पेलिंग में, स्पेलिंग याद करिएगा, ठीक है। इट इज अ कलरलेस इंडिकेटर, व्हेन एडेड इन एसिड रिमेन कलरलेस एंड व्हेन एडेड टू बेस इट टर्न्स पिंक। ओके, in phenolphthalein it is just like water, it is not having any color, it is a colorless indicator. Okay, when is added to acid it remain colorless, उसमें कोई color change नहीं आता. Okay, when you add to acid it is colorless, but we add to base, base में जब हम लोग add करते हैं वो क्या हो जाता है, पिंक में चेंज हो जाता है, पिंक कलर में. Okay, now we'll do the experiment and I'll show you how this color change is happening. Pay attention here, the color change you will see. Okay, see HCl, we are using here HCl. HCl is inorganic acid, it's a very strong inorganic acid. Okay, HCl, we are adding HCl and we are having phenolphthalein. You can see phenolphthalein, as you can see, it is just like water, no color is there. Okay, when we will take HCl in a test tube. Okay, we take HCl in test tubes. टेस्ट ट्यूब में थोड़ा HCl ले लिया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लेना है HCl, उसमें से दो बूंद हम लोग फिनोप्थिलीन डालने से भी कलर चेंज आ जाएगा. लेकिन सिमिलर थिंग व्हेन यू डू विथ इन ऑर्गेनिक इंडिकेटर्स लाइक रेड कैबेज, चाइना रोज और टर्मरिक, द कलर चेंज यू नोटिस इज नॉट सो डिफरेंट. उसमें कलर चेंज इतना डिफरेंट नहीं आएगा. एज यू कैन सी देयर इज अ व्हाइट कलर liquid forming, but you must know that this white color liquid is also considered colorless in chemistry. Chemistry में इसको colorless ही बोलेंगे, white का हो लेकिन ये colorless होता है in chemistry language. Okay, NaOH, NaOH I have said earlier, it's a very strong inorganic base. Okay, when you add phenolphthalein it must give what, pink color. Now you will see the pink color is so much different. कलरलेस से पिंक में चेंज हो रहा है, तो कलर डिफरेंस बहुत ही मतलब गाढ़ा है. ओके, व्हेन यू टेक NaOH इन ए टेस्ट ट्यूब में NaOH ले लिया. ओके, NaOH लेके हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, फिनोप्थिलीन. फिनोप्थिलीन क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन है. NaOH भी कलरलेस है. ओके, यू विल ऐड फिनोप्थिलीन. ओके, फिनोप्थिलीन ऐड करने पर देखो पूरा सटल चेंज आएगा. देखो पिंक कलर कैसे हो गया, मैजिक नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा फिनोप्थिलीन डालना पिंक कलर हो जाए. दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस आर यूज्ड बाय मैजिशियन टू फूल यू. यही रिएक्शन वो लोग भी यूज करते हैं. ऐसे दिखाएंगे, पानी ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ, उसको ऐसे हाथ डुबा देंगे पानी में, वो पिंक हो जाएगा. क्यों, उनके हाथ में फिनोप्थिलीन लगा होता है. फिनोप्थिलीन को ऐसे पानी, फिनोप्थिलीन भरा हाथ ऐसे पानी में डाल दो, पानी पिंक हो जाएगा.
वो पानी नहीं होता है, NaOH होता है, ठीक है। नाउ द पावरफुल इंडिकेटर, सेकेंड इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज एन ऑरेंज इंडिकेटर। इसका नाम ऑरेंज इसलिए है क्योंकि वो ऑरेंज कलर का इंडिकेटर ही है अपने आप में, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज। Hello students. Today we मिथाइल are going ऑरेंज to को जब हम discuss लोग about an acid-base indicator that is methyl orange. It is an orange. मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। ऑरेंज कलर एसिड है, एसिड में डालने से वो रेड हो जाता है, और बेस में डालने से क्या हो जाता है, येलो और गोल्डन येलो हो जाता है। एसिड में डालने से रेड, बेस में डालने से गोल्डन येलो कलर हो जाता है, लेकिन ये खुद ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। Now we'll do the experiment and you will see the color change in them. Acid में red, base में yellow. See now second experiment we will use the similar HCl. Okay. Then we'll take HCl in a test tube. Test tube में HCl ले रहे हैं, ठीक है। HCl ले रहे हैं test tube में. See this is an orange kind of indicator. The person will show you how this color is also orange. You will take a little amount of methyl orange in test tube and show the orange color to you. See the color of the indicator is orange. Okay, the color of the indicator is orange. Orange color indicator. Now we'll add HCl in a test tube. When we add HCl in a test tube, we are adding HCl. Okay. HCl test tube में ऐड हो गया. Then we'll add methyl, our indicator, methyl orange, our indicator. It's a very strong inorganic indicator. It's used in labs. Okay. When you add methyl orange to acid, it turns red. Reaction होके red हो जाता है color. देखो डाल दिया. A few drops will do the work. See, if you add more drops, it will give more red color. It is now a pinkish type of color, but when you add more drops of methyl orange, or you take a higher concentration acid, it will turn into deeper colors. Okay. Now we'll see the same reaction with NaOH is a strong base. In base, methyl orange changed to golden yellow. Now here you will see the color change is so much different. ऑरेंज से पूरा येलो हो जाता है, ठीक है। Now see, we'll take NaOH in a test tube. In test tube. Now we'll add methyl orange, which is the orange color indicator. In basic medium, it gives golden yellow color. Okay. See how the yellow color is forming. Now, if you shake it, it will turn all the way into yellow. See yellow color of the methyl orange. See. Now the last part of this chapter is the neutralization reaction. In the beginning of the chapter, I told you how salts are formed. Salts are formed by reaction of acid with base, and this reaction is given the name neutralization reaction. We neutralize the acid or the base. ठीक है? The reaction between acid and base is called the neutralization reaction. The product of neutralization is called the salt. See, neutralization reaction is exothermic reaction. Exothermic मतलब इसमें से heat निकलता है. ऐसे आप आग जलाओगे, मतलब लकड़ी जलाओगे तो उसमें से हीट निकलता है ना, ठंडी दिन में जलाते हो. दैट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सिमिलरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके. द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज इवॉल्व, मतलब जो निकल रहा है हीट, दिस रिएक्शन इज नॉट वेरी लार्ज, जो आपको गर्मी फील होगा पूरा, पर गर्मी निकलता है इससे. नॉट लाइक द वुड्स बर्निंग, जैसे लकड़ी जल रहा है उस टाइप का हीट नहीं निकलेगा, पर हीट निकलेगा. ठीक है. तो इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जनरल रिएक्शन इज रिटन एज, ये जनरली ऐसे लिखा जाता है. ठीक है. मैं आपको अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा कैसे लिखा जाता है. एसिड बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है.
acid base gives salt and water. Acid HCl, base NaOH gives salt NaCl. That is NaCl is your normal salts used in home. That is common salt. HCl जो white कलर का salt आप लोग खा रहे हैं, that is scientifically named as NaCl. ये उसका chemical formula है, ठीक है, salt. And again we have HNO3. This is used to clean what? Basins, marbles, tiles in your home. HCl is used by the gold ornament shop to clean the gold ornaments. NaOH is the base. When you add both, there will be water. Then you will have NaNO3. This is also a salt. Okay. Salts can be acidic or basic. Okay, salts are also acidic or basic. Salts are how acidic or basic, जिसमें जो भी salt में H आयन, हाइड्रोजन आयन दे सकने का कैपेबिलिटी होगा, कि OH आयन दे सकने का कैपेबिलिटी होगा, वो लोग बेस और एसिडिक सॉल्ट में गिने जाते हैं, ठीक है. NaCl formed is also known as stable salt. All salts formed in this reaction may be acidic, basic or neutral. As I've said earlier, the acidic, basic और neutral भी हो सकते हैं. See, depending on the number of hydrogen ions or the hydroxides ion in the salt, they are known as acidic or base. ज्यादा hydrogen ion होगा तो उसको क्या बोलेंगे? Base, acidic salt. जो ज्यादा hydroxide ion देगा उसको basic salt बोलेंगे, ठीक है. Now we'll learn what are the relations in the everyday life. ये चैप्टर का मैं पहले स्टार्टिंग से बोला हूँ, इस चैप्टर को हम लोग जब सीखेंगे आपको पता है धीरे धीरे चलेगा कि इसका एप्लीकेशन आपको डे टू डे लाइफ में कहाँ मिलता है, आप ये कहाँ यूज करते हैं इस चैप्टर का नॉलेज, ठीक है. लाइक एसिड रेन, यू मस्ट हैव हर्ड एसिड रेन. एसिड रेन इज अ वेरी व्हाट प्रॉब्लमेटिक थिंग टुवर्ड्स नेचर, बिकॉज एसिड किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता ज्यादा, ठीक है, ना आपके लिए ना प्लांट्स के लिए. In air, where you have number of pollutions like carbon dioxide, sulfuric dioxide, nitrogen dioxide, these are, you know, these are gas जो आपके पेट्रोल जलाने से गैस कार से निकलता है, बाइक से निकलता है, जो एग्जॉस्ट पाइप से निकलता है, उनमें ये सब गैस प्रेजेंट होता है. कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. व्हेन दिस गैस तो कहीं भी हो सकता है ना, गैस ये जो गर्म हवा होता है वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है. When they react with the water present in the clouds, they form acid and the rain this called are known as acid rain. When this gas, ये जो गैस है ऊपर उठता है, क्लाउड्स में पानी होता है ना, क्लाउड्स क्या होता है? दिस इज a huge collection of water vapor जो थोड़ा सा कंडेंस होकर क्लाउड्स फॉर्म करता है, ठीक है. जो collection of water vapor. Okay, clouds are only named as collection of water vapor. When this gas goes up into the atmosphere and react with this cloud water, they form acid. And this when this cloud rain कैसे होता है? When the cloud gets heavy enough, okay, it rains. Clouds में जब बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, वो rain में convert हो जाता है. So अब तो इसमें पानी के साथ क्या है? Acid भी है. तो जब रेन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एसिड रेन. एसिड रेन इज हार्मफुल टू वाइल्ड लाइफ, ओल्ड बिल्डिंग एंड हार्मफुल टू सॉइल एंड प्लांट्स. ओके, इट इज नॉट हार्मफुल टू अस ओनली, इट इज हार्मफुल टू द वाइल्ड लाइफ अराउंड अस, ठीक है. जब एसिड रेन रिवर्स में गिरता है, ठीक है, तो पानी जो है वो भी एसिडिक हो जाता है. एसिडिक होने से जो मछली लोग होते हैं वो लोग मर जाते हैं, ठीक है. ओल्ड बिल्डिंग्स लाइक ताजमहल, कुतुब मीनार, दे आर इन एंडेंजर, मतलब उनको बहुत डेंजर है एसिड रेन की वजह से. एसिड रेन होने से, एसिड होगा ना, एसिड तो किसी को भी जला सकता है, तो एसिड रेन होने से ये बिल्डिंग धीरे 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 खराब होने लगता है, ठीक है. हार्मफुल टू द सॉइल एंड प्लांट्स. सॉइल में, सॉइल का पर्टिकुलर एसिड होता है कि बेस होता है अमाउंट, उससे ज्यादा एसिड ज्यादा होने से वो एसिडिक सॉइल हो जाता है, बेस ज्यादा होने से बेसिक सॉइल हो जाता है. So the plants when they grow in the soil, they grow with a particular combination of acid or base. मतलब 5 ग्राम, मतलब इतना एसिड है, इतना बेस है, तभी जाके एक प्लांट ग्रो कर पाएगा, ठीक है. पर ज्यादा एसिड रेन होने से तो एसिड क्वांटिटी बढ़ जाएगा ना,
एसिड सॉइल पे गिरेगा तो वो एब्जॉर्ब होगा सॉइल में, तो सॉइल का एसिडिक कंटेंट बढ़ जाएगा। तो वहां के प्लांट्स लोग जो पहले से इतना एसिड और इतना बेस में जी रहे थे, तो उनमें उनको ज्यादा एसिड मिलेगा, तो उनको वो क्या करेंगे, मर जाएंगे। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नो व्हाट इज एसिड रेन। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक्स, they are added to the cold drink to make them more fierce and better tasting। जो आप लोग ढक्कन खोलते हैं साउंड आता है, करके साउंड आता है, वो क्यों आता है? द कार्बोनिक एसिड जो ऐड होता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, उसके वजह से ये साउंड आता है फिस करके। वो जो आप लोग जब कोला को कि थम्स अप को ऐसे ग्लास में डालते हैं, वो ग्लास के ऊपर ऐसे जो झाग बन जाता है, द फोम जो बनता है, किस लिए बनता है? कार्बोनिक एसिड है बोल के इसमें। ठीक है, सलाइवा इन योर माउथ इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। आपने सुना होगा मच्छर काट लिया, मम्मी बोलती है थोड़ा सा सलाइवा लगा दो। ठीक है, कि कहीं ऐसे थोड़ा सा छिल गया तो थोड़ा सलाइवा लगा दो। क्यों? क्योंकि वो बेसिक नेचर होता है, वो एंटीसेप्टिक होता है। बेसिक नेचर होने से वो एंटीसेप्टिक हो जाता है। ठीक है, ब्लड इज लिटिल एसिडिक इन नेचर। जो आपका ब्लड है वो थोड़ा एसिडिक है, उसमें बेस कंटेंट कम है, एसिडिक ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। नेटल स्टिंग, नेटल एक पॉइजनस इंसेक्ट है। जब भी वो काट देता है, ठीक है, काटने पर उसका स्टिंग जो होता है, वो काटने पर उसका डंक मारने पर, डंक में एसिडिक पॉइजन होता है। ठीक है, तो पॉइजन ट्रांसफर हो जाता है आपके स्किन में। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था? एसिड और बेस। तो उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी क्या चाहिए हम लोग को? बेस चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप का प्लांट आता है, उसका नाम क्या है? डॉक्किल लीफ। एक प्लांट है डॉक्किल लीफ, पता नहीं इसका हिंदी नाम क्या है, बस आपको ये याद रखना है कि नेटल स्टिंग होने से डॉक्किल लीफ को रब करने से वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो वो जो एसिड हम लोग को हार्म करने वाला था वो और होगा नहीं बेस के वजह से। ठीक है, द जूस ऑफ द लीफ हैज बेसिक प्रॉपर्टी हैज न्यूट्रलाइज द एसिड। नाउ बी स्टिंग, मधुमक्खी जब काटती है, मधुमक्खी में भी क्या है? एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर। बी स्टिंग इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर एंड कॉज बर्निंग सेंसेशन ओवर द एरिया। अप्लाइंग विनेगर और सोप गिव्स रिलीफ। ओके, बेसिक नेचर है। विनेगर नहीं तो सोप डालने से वो क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। सिमिलरली एंट बाइट्स हैज फॉर्मिक एसिड इन देम। जब चींटी काट देती है, चींटी के डंक में भी क्या है? फॉर्मिक एसिड है। बी में भी एक एसिड होता है, वो बहुत बड़ा नाम है इसलिए नहीं लिखा हूं, वो आपको जानना भी नहीं है। सिमिलरली एंट में फॉर्मिक एसिड होता है। वन रबिंग एल्कलाइन